الرحیم۔ ناظرین، ایک بریلوی عالم کا شیعہ ذاکر حسن اللیاری سے ایک مناظرہ ہوا۔ آپ اس مناظرے کو سماعت فرمائیں کہ حسن اللیاری کو کیسے اس نے بے نقاب کیا اور حسن اللیاری نے اہل بیت کے افراد پہ بھی کفر کا فتویٰ کیسے لگایا۔ آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے احتجاج تبرسی جلد نمبر 1 میں شیعوں کو جنگلی کھوتا کہا ہے، جنگلی کھوتے کہا ہے۔ تو اگر میں آپ کو جنگلی کھوتے کہنا شروع کر دوں تو یہ آپ کہیں کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ کو، نہ میں آپ کو جنگلی کھوتے کہتا ہوں، نہ گھر والے کھوتے کہتا ہوں، نہ کچھ کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو آپ کسی کا نام نہ بگاڑیں کہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ آپ کی احتجاج تبرسی میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے شیعہ نے علی کو جنگلی کھوتے کہا ہے کہ میرے پاس جو یہ کافی آپ کے کلینی کی موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کو مرتد قرار دیا ہے۔ آپ تو کافر کی باتیں کر رہے ہیں، تھانو مٹو کٹے علی پاک نے۔ آپ اپنے بزرگوں کو ذرا مسلمان ثابت کریں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا۔ چیک کروں مزید ان کا امتحان ہوں تو ایک بندہ بھی مخلص نہیں نکلے گا۔ یہ جن کو مرتد قرار دیا، اب یہ بھی حضرت عمر کی جماعتی ہے یا شیعوں کو کہا ہے؟ یہاں تو شیعہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ بدعتی تھے، کافر تھے، معاذ اللہ جنگی تھے حضرت ابوبکر، تو حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہاں حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو کافر کہا، لیکن یاری صاحب کو نہ آیت آئی ہے نہ آئے گی، نہ قرآن سے ملی ہے نہ ملے گی۔ اب برداشت کرنا، کیونکہ آپ نے بدعت کا، جنمی کا، کافر ہونے کے بارے میں بات کی ہے، جیسے بھی کی ہے آپ برداشت بھی کرنا، کیونکہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتی، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے۔ اب جواب دینا تو میرا حق ہے کہ میں بھی آپ کو، جو آپ نے بدعت کی باتیں کی ہے، میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس نے بدعت کی ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے۔ اور مٹھا پت گوڑا تھو تھو کرنا ہو تو یاری صاحب، آپ نے کوئی ایک بھی آیت نہیں پڑھی ابو بکر عمر کے متعلق کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ابو بکر عمر عثمان کو کافر کہا ہے یا کافر ہونے کے لیے یہ دلیل ہے، اور اس دلیل کی بنیاد پر ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ کافر ہیں، سب نے سن لیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تفسیر دکھائی اور آپ نے کہا کہ مفسر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اس میں وہ روایات لاؤں گا جو ساری کی ساری صحیح ہوں گی۔ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ سارے کرتے ہیں، آپ بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت، ہمارے اہل بیت ہمارے لیے جو ہیں وہ حجت ہیں، لیکن ہم آگے میں بتانے والا ہوں کہ آپ کے لیے حجت ہیں یا نہیں، آپ ان کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں، کیسے آپ ٹھکراتے ہیں۔ تو مفسر کا یہ دعویٰ ہے، اور مفسر کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا تھا۔ شیخین کی تکفیر کے لیے آپ نے اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فرمان کیوں نہیں پڑھا؟ رسول اللہ کا فتویٰ کیوں نہیں پیش کیا؟ مفسر کون ہے؟ اگرچہ مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں ہے، مفسر کی تفسیر میں یہ بات نہیں ہے۔ اب آپ ہنسے اس بات پر اس لیے کہ آپ کے پاس ایک بھی آیت یا ایک بھی اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے ایسا پیش نہیں کیا، حالانکہ میرے پاس جو یہ کافی آپ کے کلینی کی موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شیعوں کو مرتد قرار دیا ہے۔ آپ تو کافر کی باتیں کر رہے ہیں، تھانو مٹو کٹے علی پاک نے۔ آپ اپنے بزرگوں کو ذرا مسلمان ثابت کریں، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے نزدیک تو یہ چیز حجت ہے۔ پھر آپ نے یہاں سے جو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی ہے، اس کی سند کیسی ہے، اس کے روات کیسے ہیں، اس میں اتصال ہے یا نہیں، یہ بات بھی آپ کے اوپر لازم تھی، آپ ادھر نہیں گئے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر وہ روایت اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ زنی ہے، اور زنی کسی بات سے کسی کے لیے حکم کفر ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے پہلے آپ کو بولا تھا کہ کسی کو کافر ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل درکار ہوتے ہیں، آپ نے وہ دلائل نہیں بتایا، اس لیے کہ آپ نے جو ہے صرف وقت جو ہے پاس کرنا تھا، ٹائم گزارنا تھا، بس ابو بکر عمر کے بغض میں جو آپ نے صرف بس ان کو کافر کہنا تھا، لیکن آپ کے ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اس تفسیر سے کیا تفسیر والا اللہ کا رسول ہے؟ کیا تفسیر والا اللہ ہے کہ اس کی بات اگر ہو بھی، ایسی بات اگرچہ دوسری بات میں ہے بھی نہیں، پھر آپ نے کہا پھر یہ چیز تو آپ پیش نہ کر سکے، شیخین کے متعلق کوئی کفر والی بات آپ پیش نہیں کر سکے۔ پھر آپ نے حضرت زید کے بارے میں یہ کہا کہ مجلسی نے اس کو کافر کہا ہے، تو یہ آپ بالکل واضح کہنا ہے، ایک حضرت زید تو نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ بن زید ہے، کافی کے اندر اس کا ذکر ہے۔ عیسیٰ بن زید نے تو حضرت امام جعفر کے متعلق یہاں تک کہا کہ میں تیری جھنی توڑ دوں گا، اور ان کا مال بھی لوٹ لیا تھا، اور ان حضرت امام جعفر کے گھر والوں کا بھی مال لوٹا ہے۔ تو امام جعفر کا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے ان کے لیے تو کوئی امام باڑا بنا کے آپ نے ماتم نہیں کیا، فتح کے لیے تو آپ باتیں کرتے ہیں۔ امام باقر کا جو مال خود بنو فاطمہ اولاد فاطمہ الزہرا نے جو لے لیا ہے بقول آپ کی کتاب کے، آپ نے اس کے اوپر کبھی ماتم نہیں کیا۔ اور صرف حضرت یہ زید نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ بن زید نہیں ہے، صرف نفس زکیہ نہیں ہے، بے شمار اہل بیت کے لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے التشریف کتاب کا نام ہے، الملاحم کتاب کا نام ہے، آپ نے اس میں سے روایت پڑھی ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ بنو فاطمہ میں سے دجال آئیں گے، آپ نے ان کا لفظ کافر بھی بولا ہے ان کے لیے، اسی چینل کے اوپر اس کا بیان موجود ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جو شخص اہل بیت پیغمبر کو، جو اولاد فاطمہ کو کافر کہتا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے جاری نے حضرت زید کو کافر کہا، امام زین العابدین کے بیٹے کو جاری نے کافر کہا ہے، تو حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو یا کسی صحابی کو یہ بندہ اگر کافر کہے تو کون سی تعجب والی بات ہے؟ جو اولاد پیغمبر کو کافر
काफिर कहता है। ये हाल है, कहते हैं कि हम नबी अलैहि सलाम ने हुज्जतुल विदा के ऊपर फरमाया कि जो मेरी अहल बैत है और मेरी इतरत है, इनको तुम थाम लो ताकि तुम गुमराह ना हो। ये थामा है कि तुम उनको काफिर करार दे रहे हो। और हजरत इमाम जाफर, जिनको जाफर कज़्ज़ाब तुम कहते हो, उनको क्या कहते हो? अब्दुल्ला आफ्ताब के मुतल्लिक़ तुम क्या कहते हो? जिन जिन अहले बनु फातिमा के लोगों को तुमने काफिर कहा है, उन्होंने इमामत का इनकार किया। मैं आपको बेशुमार रिवायात काफी से भी दिखा सकता हूँ, बाकी किताबों से भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा ये इमाम नहीं है। हजरत ज़ैद ने तो इमाम बाकर को, अपने भाई को इतने तक कह दिया कि इमाम वो नहीं होता जो घर पर्दों में छुपा बैठा रहे। आप कहते हैं फलां साहबी जंग से भाग गया था, आपके इमाम तो जहाज पे गई नहीं है। हजरत इमाम ज़ैद कहते हैं उनको कि इमाम वो नहीं होता जो अपनी अवाम से जुल्म को दूर न करे और घर पर्दों में छुपा बैठा रहे। जहां तक कहते रहे, और जहां तक ईसा बिन ज़ैद ने हजरत इमाम जाफर को कहा तेरी थुन्नी माल देंगा। तो जो इमाम जाफर को जो शख्स कहे, उनके मुतालिक आप फतवा कुफ्र दे चुके हैं। तो खुद मिल्लत जाफरिया शिया ये देखें कि जो शख्स अहले बैत बनु फातिमा के, वो चमरिस्तान की अजीम कलियों को जो शख्स काफिर कहता है, वो अबू बकर उमर को काफिर कहता है, तो आप खुश होते हैं। ये शख्स बनु फातिमा औलादे पैगंबर को काफिर कहता है। फिर इसने कहा कि एक शख्स जो है अमल से भी, अमल न बजा लाने की वजह से भी काफिर हो जाता है, अल्लाह पाक बता देता है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किसी जगह भी ये नहीं फरमाया कि अबू बकर, उमर, उस्मान या फलां सहाबी काफिर है। मैंने इनको बेशुमार मर्तबा कहा कि एक आयत पढ़े, लेकिन खूब करके इन्होंने जो है बात जो है खत्म कर दी है। इनके पास एक भी आयत नहीं है। जबकि इन्होंने आल सुन्नत का नाम लेते हुए इन्होंने कहा है कि उमरियों के पास जो है कोई दलील नहीं है, कोई चीज नहीं है, इनका दीन नाकिस है। इन्होंने उमरी बोला है। ये आल सुन्नत का नाम बिगाड़ते हैं, खुद ये पहल करते हैं, बेहतरामी में पहल करते हैं, नाम बिगाड़ते हैं। जब इनको इनकी किताब से बंदा कह दे कि आपकी जमात को हजरत अली मुर्तजा ने क्या कहा है। हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने एहतजाज तबरसी जिल्द नंबर 1 में शियों को जंगली खोता कहा है, जंगली खोते कहा है। तो अगर मैं आपको जंगली खोते कहना शुरू कर दूं तो ये आप कहेंगे आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता आपको, ना मैं आपको जंगली खोते कहता हूँ, ना घर वाले खोते कहता हूँ, ना कुछ कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये देखिए आपकी किताब में ये चीजें आ रही हैं, तो आप किसी का नाम ना बिगाड़ें कि मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊं कि आपके एहतजाज तबरसी में हजरत अली मुर्तजा ने अपने शियाने अली को, आपने हदीस कोट करना है तो कर लो भाई, उससे अगर अबू बकर उमर का इस्लाम साबित होता है। वैसे भी पढ़ना है, जो मर्जी पढ़ना है पढ़ो। आपने कोई एक भी आयत हदीस नहीं पढ़ी उनके कुफर के मुतल्लिक, सिर्फ दावा ही किया है। दावे से सबको पता है। मैं दोबारा अपनी बारी में दोबारा आपको समझा दूंगा। नहीं है, ठीक है, दोबारा अपनी बारी में दोबारा समझा दूंगा आपको। फिर खामोश हो जाएं। 378 नंबर सफा है एहतजाज तबरसी में। हंसे, आपका हक बनता है, आपको हंसना भी चाहिए। सफर में 372 बोला, 78 बोला। ओके, इसमें फरमाया वाइज़ुकुम बिल मौइज़तिल बालिगा फतनफिरून अनहा कअन्नकुम हुमुरुम मुस्तनफिरा फरत मिन कसवरा। ये कुरान की आयत है। कुरान की आयत है, ये अली मुर्तजा। अच्छा ये अच्छा ठहर जाए, फिर दूसरी सुन लें। ये अल-फुरूम अल काफी है, मोहम्मद बिन याकूब बिन इसाक कुलैनी राजी की किताब है। इसमें आपने शियाने अली को आपने मुर्तद करार दिया है, ठीक है। 2015 नंबर सफा। इसके पास अबू बकर उमर पे हमारे दलाइल को रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए बातें शुरू कर दी इसने। पढ़ो काफी पढ़ो। पेश की ना आपने, पेश की, आयत पेश की, हदीस पेश की है। तो मैंने क्या पेश किया? मैंने जो पेश किया उसको पढ़ो और कह दो, इसलिए ये बात है। उसमें कोई आयत में नहीं है अबू बकर उमर के लिए कोई तस्रीर नहीं है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि कुफर के लिए कौन से दलाइल शरीयत दरकार होते हैं, आप बोल ले। इसलिए कि आपको पता था आपने फंस जाना है। इल्ला वासिफतन वलिम तहनतुम लमा वजदतुम इल्ला मुर्तद्दीन। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। फरमाया कि अगर मैं इनको चेक करूं, मजीद इनका इम्तिहान हूं, तो एक बंदा भी मुखलिस नहीं निकलेगा। ये जिनको मुर्तद करार दिया, अब ये भी हजरत उमर की जमाती है या शियों को कहा है? यहाँ तो शिया का लफ्ज आया हुआ है। अगर मैं तो फिर भी तो आप अबू बकर उमर के लिए भी कोई ऐसा दिखाए ना कि कुरान में अल्लाह पाक ने उनके लिए कुफर की बात की हो, अल्लाह पाक ने उनके लिए जो है मुर्तद की बात बोली हो। आपने कोई आयत पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, उसमें कोई है ऐसी बात? अच्छा, फिर आपने बिदअत की बात की। बिदअत की बात का जवाब ले लेना, बिदअत की बात का जवाब ले लें। आपने कहा कि जी इन्होंने बिदअत किया, फलां फलां को खलीफा बनाया और ये बिदअत है, और आपने उस पे आयत पढ़ी वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। सूरह इनाम की गलबन आयत है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। और आपने कहा बिदअती जो है वो काफिर है और अल्लाह के हुक्म को इन्होंने बदला है, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया और उसके बरअक्स हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर ने किया, और ये बिदअती हैं और ये जहन्नमी हैं और ये काफिर हैं। ये आपने इससे इस्तिदलाल किया। अव्वल तो इस आयत में अल्लाह पाक ने ये बात अबू बकर उमर को नहीं कही, लेकिन अगर कोई शख्स
आपने कहा कि बंदा अपने अमल से जो है ऐसे साबित होता है, ये आपकी दलील है, ये आपका ख्याल है, लेकिन आपकी दलील मैं आपके गले में डालने लगा हूं, इसलिए कि अगर आप हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिदअती कहते हैं, तो आप अल-फुरूम मिनल काफी से आप ये रिवायत पिछली मर्तबा पढ़ चुके हैं कि इमाम बाकिर जो है उन्होंने ये फरमाया कि बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती, बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती, जबकि एहतजाज तबरसी के अंदर ये बात आ रही है कि हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाज पढ़ी है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, अगर वो बिदअती थे, काफिर थे, माअज़ल्लाह जहमी थे हजरत अबू बकर, तो हजरत अली ने उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ी है? जब हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, उसूल है, हदीस पढ़ो, मैं पढ़ देता हूं, बस पढ़ता हूं। आपके नजदीक जबकि ये उसूल है कि मासूम की नमाज गैर मासूम के पीछे नहीं होती, 219 नंबर सफा है, जैसे आपको तो पता ही नहीं है ना। पूरा हदीस पढ़ो। आपने सवाल पे यूसुफ जो पढ़ा था पूरी हदीस पढ़ी थी? अगर मुझसे मुतालबा करो कि पूरी पढ़ो तो पूरी पढ़ लेता हूँ, वहदर अल मस्जिद और सामने वाले ने मुझसे मुतालबा नहीं किया कि पूरा पढ़ो, तो तो अगर वो मुतालबा करता तो मैं पढ़ लेता। तो बिदअती वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है इस्तिब्सार के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे को हराम करार दिया है, गधे को अल्लाह के रसूल ने मासूम ने उसको हराम करार दिया है, लेकिन इमाम बाकिर ने उसको हलाल करार दिया है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, वो हमारे शरीयत में नहीं है, हमारे शरीयत में नहीं है। आप ठहर जाएं, खामोश हो जाएं, ठहर जाएं, वक्त खत्म है आपका भाई, वक्त खत्म है, वक्त खत्म है। जबकि इन्होंने खुद काफी सारी रिवायत पढ़ी, मैंने बता दिया कि बिदअती के पीछे नमाज नहीं होती, फिर इन्होंने बिदअती के पीछे या किसी के पीछे नमाज को जायज भी करार दे दिया कि तकिया के तौर पे पढ़ सकते हैं, इसलिए कि उस रिवायत में कोई तकिया की बात नहीं, ये इनकी अपनी उसके अंदर डाली हुई बात है। दूसरी बात कि अगर अल्लाह ताला का एक हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म है, कोई शख्स उसके बरअक्स हुक्म लाता है तो वो उसको आप बिदअत कहते हैं, तो आप दूसरे लोगों के हुक्म को भी बिदअत करार देना कि जब आपके इमाम जो है आप अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ने को बिदअत करार देते हैं, जबकि वसैल शिया के अंदर इमाम जाफर इस बात का हुक्म देते हैं, और मल्ला जाल फकी के अंदर भी ये बात आ रही है, लेकिन मल्ला जाल फकी वाली रिवायत के अंदर तकिया के लफ्ज हैं, लेकिन वसैल शिया वाली रिवायत के अंदर उसमें तकिया के लफ्ज नहीं है, और इमाम बाकिर जो है वो भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ते थे, इस चार के अंदर भी आया हुआ है। और इसके अलावा जो है दुबर की बत्ती करना, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, जबकि आपके इमाम ने इसके जवाज का हुक्म दिया है, आपने इसको जायज करार दिया। इमाम अली रज़ा ने, आप कहें तो मैं आपको हवाला पेश कर देता हूं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज को हराम करार देते हैं तो इमाम दूसरे इमाम कौन है कि वो रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे और उसको वो हलाल और जायज करार दे। इस बात का भी अगर आप सब हदीस पढ़ो, जो भी कहते हो ना हदीस पढ़ो, जो भी हदीस कहते हो पढ़ो भाई। टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है ना हदीस पढ़ो पे, इतना टाइम नहीं है ना। है फिर झूठ कह रहे हो, फिर हम जवाब नहीं देंगे भाई, हदीस नहीं पढ़ोगे हम जवाब नहीं देंगे। आपकी किताबों में आप टाइम देंगे मैं पढ़ दूंगा। मैंने आपको टाइम दिया है कि तुम इस्तेदलाल करो, तुम अबू बकर उमर के मुताबिक तो जवाब नहीं दे रहे ना, तुम उधर वो तकी वाली हदीस लेके आओ। ये पढ़ो रिवायत पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, लेकिन मौजू पे बात करो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अगर ये बिदअत है अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ हुक्म लाना, तो फिर इनके ऊपर हुक्म लगाओ कि इमाम जो है इस तरह क्यों हुक्म क्यों इमाम इस तरह का हुक्म क्यों देते हैं कि जो है तुम पहले साबित करो, पहले अपनी बातों को साबित करो भाई, अपनी बातों को साबित करो। मैं तब करूंगा जब आप मेरा टाइम बढ़ा देंगे, मैं रिवायत पढ़ दूंगा, दोनों रिवायत पढ़ दूंगा। मैंने कह दिया कि अगर आप मौजू पे बात करेंगे मैं आपको टाइम दूंगा, आप मौजू पे बात करेंगे। जो है पाँव धोना, वुजू के अंदर पाँव धोना, ये बिल्कुल अबू बकर उमर से निकल गया भाई, अबू बकर उमर से निकल गया। उमर के ऊपर अगर आप फतवा लगाते हैं बिदअत का, तो इनके ऊपर आप हुक्म क्यों नहीं लगाते बिदअत का? आपके इमाम उसके बरक्स करें, आप उसके ऊपर क्यों नहीं हुक्म? अब अल्लाह का कुरान ये बात कहता है कि ईमान वालों को कि नजरें नीची रखें औरत से, जबकि हजरत अली मुर्तजा के मुतालिक आपकी रिवायत ये आई हुई है कि वो जब हदीस पढ़ो ना, इस तरह नहीं होता भाई, हदीस पढ़ो। पढ़ता हूं। अन अली अलैहि सलाम अन्नहु काना इज़ा अरादा अन यब्ता अल जारियता यक्शिफु अन साक़िहा अन यब्ता सनद के अंदर है जी, कि जब लोंडी लेना का इरादा करते थे तो लड़की की टांगे खोल के चेक करते थे, क्या हजरत भी ऐसा कर सकते हैं? और इमाम जाफर से है कि और जो है वो उधार पे देना जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि अल्लाह पाक ने वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफ़िज़ून फरमाया कि ये जो शर्मगाहों की हिफाजत करें, और आपके इमाम कहते हैं कि इसको उधार पर दे दे। ये क्या अल्लाह के कुरान के खिलाफ हुक्म नहीं है? अल्लाह के कुरान के खिलाफ ये आपके इमाम का फैसला नहीं है या नहीं है? यहाँ तक कि शर्मगाहों के मुतालिक अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया, मनाक़िब आली अबी तालिब के अंदर इमाम तकी की ज़ौजा के मुतालिक में फजल के मुतालिक ये बात आई हुई है कि वो अपनी शर्मगाह तुमको दिखाया करती थी। क्या ये तौहीन नहीं आले बैत की? तुम बकवास कर रहे हो, वो हदीस पढ़ो ना, तुम हदीस क्यों नहीं पढ़ रहे? मनाक़िब हदीस पढ़ो, ये मौज़ा है इमाम तकी का। तो सामीन, आपने ये वीडियो समाअत फरमाई, अब मजीद इस पे कोई तबसरा में नहीं करता, बस इतना ही कहूँगा कि वो लोग जो बार बार हमें कह रहे थे कि आप हसन अल-लयारी से मुनाजरा करें, हसन अल-लयारी से बात करें, हसन अल-लयारी की औकात ये है
جو آج کی ویڈیو میں اہل تشیع نے دیکھ لی۔ امید ہے بہت ساروں کی طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی یہ ویڈیو دیکھ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔